Welcome students, how are you all? Welcome to the Career Academy. So today we're going to discuss about some basic concept of chemistry. So what do you mean by chemistry? क्या है chemistry क्या है? So chemistry, what do you mean by chemistry? So chemistry, it is a branch of science. We can say that it is a branch of science. So it is a branch of science that deals with composition, properties of matter and the chemical reactions or changes involved in it. ठीक है? So it is a branch of science which deals with the composition and properties of matter and the chemical changes So you can say that it is a branch of science which deals with composition and properties of matter and the chemical changes involved in it. Or we can generally say that chemistry deals with atoms and molecules. So in general we can say that chemistry is a science of molecules and atoms and their transformations. So chemistry so it is a branch of science which deals with composition, properties of matter and the chemical changes involved in it. So here is a thing which is matter. So matter क्या है? In general you can say chemistry deals with matter. So matter के बारे में जो भी कुछ है chemistry उसके साथ डील करता है. So matter क्या है? हम अभी समझेंगे कि matter क्या है. So matter. What do you mean by matter? Matter क्या है? So matter is anything that has mass and volume. ठीक है? So matter could be anything which has mass and volume. So we can say anything. This water bottle, pen, this board, this room. ठीक है? तो हम क्या उसको सबको हम मैटर बोल सकते हैं ना. So anything example ये पेन और क्या वुड आयरन एक्सेट्रा हम सबको बोल सकते हैं ना वो मैटर है. सो again we further classifies matter into different types. So there are two types of classification: physical classification and chemical classification. So matter
There are two types of classification: physical classification and chemical classification. We know that physical classification is deals with states of matter or physical state. ठीक है, physical states of matter. So हम कितने states of matter को observe करते हैं? There are three states of matter which we can observe. These are solid, liquid and gas. ठीक है. We know that physical classification of matter deals with what? States of matter. There are three states of matter which we can observe. What? That is solid, liquid and gas. There are another two types of matter which we do not observe but we know. These are plasma and Bose-Einstein condensate. ठीक है. So there are plasma and Bose-Einstein condensate. So physical classification we know solid, liquid and gas. So under physical classification of matter, we classify as matter as solid, liquid and gas. So solid. What is solid? What is solid? Oh, it has so we can say solid has a definite mass and volume. Solid has a definite structure where we can say it has certain mass and volume. This pen, we can say this is a solid pen because it has a mass and volume, definite mass and volume. So in solid, we can say that the particles are closely packed. Each other and there is a force of attraction. So in solid, the particles are closely packed and there is a force of attraction. ठीक है. So solid में क्या होता है? Particles are closely packed and there are force of attraction which is like more force of attraction than liquid and gas. So here in solid, the particles are closely packed. We can say that there are less space in between them. So there here in solid there are less space in between them. These are closely packed and these are certain mass and volume. So as examples we can say solid के क्या example है? Solid, iron, जैसे iron, wood, ये सब हम सॉलिड बोलते हैं ना. दिस प्लास्टिक समझ आ रहा है? सॉलिड किसे बोलते हैं? देन ये लिक्विड. सो लिक्विड हम किसे बोलेंगे? लिक्विड हम किसे बोलेंगे? लिक्विड हम किसे बोलेंगे? वाटर को. लिक्विड it has volume
but no what? No shape. But we know that solid has shape. Solid has certain shape, but liquid don't have any shape. It takes the shape of the container where it placed. ठीक है इसमें where liquid is kept. So there are the particles in liquid are less closely packed than solid. We know that, and there is the force of attraction which is less than solid. So we know that. हम किसे in liquid हमारे particles कुछ ऐसे दिखेंगे नहीं ठीक है ना. So examples क्या है वाटर और कॉफी एंड वाटर टी कॉफी मिल्क हम क्या बोलेंगे उसे लिक्विड ही बोलेंगे. अभी लास्ट स्टेट ऑफ मैटर विच इज गैस. So gas, what do you mean by gas? Yeah, it has no shape and no volume. ठीक है. So गैस के पास ना ही कोई शेप है ना ही कोई वॉल्यूम है. समझ में आ रहा है. And the particles in gas are far apart from each other. ठीक है. इसको हम गैस बोल सकते हैं. So particles are far apart from each other and there is the force of attraction is what? Very less. ठीक है ना. समझ में आ रहा है. अगर हम हमारे हाथ में कोई भी सॉलिड लेट्स दिस टेक पेन दिस. सो अगर हम पेन ले रहे हैं तो वो ना ही कुछ शेप चेंज कर रहा है कुछ नहीं. उसका एक सर्टन वॉल्यूम है और शेप है. बट अगर हम हथेली पे क्या पानी लेंगे तो क्या होगा. थोड़ा सा प्यार यहाँ पे पानी लेंगे तो क्या होगा. वो मेरे जो भी जितना भी मेरे हाथ में रह पाएगा उतना ही रहेगा ना. मतलब इट कंटेन्स व्हाट. सो अगर हम एक ग्लास में पानी लेंगे तो क्या होगा. हमने अभी पढ़ा क्या कि लिक्विड हैज सर्टेन वॉल्यूम बट नो शेप. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. सो अगर हम ग्लास में पानी ले रहे हैं तो अगर 100 ml वाटर हम ग्लास में ले रहे हैं तो वो क्या करेगा ग्लास का शेप ले लेगा. अगर हम वही 100 ml बाउल में लेंगे तो क्या होगा वो बाउल का शेप ले लेगा. समझ में आ रहा है. और अगर हम गैस को क्या है एक गैस अगर हम क्या फायर एक्सटिंग्विशर सबने देखी है तो उसको ओपन करने से क्या होता है. वो जो ड्राई आइस होता है वो तो गैस में कन्वर्ट होके यहाँ वहाँ चला जाता है ना. वहाँ पर जब निकालते हैं ठीक है ना. तो गैस को हम नहीं रख सकते. उसको खोलेगा अगर वो क्या होगा दौड़ के चला जाएगा. ठीक है. सो एग्जाम्पल्स. तो गैस में बहुत सारे गैसेस हैं जैसे कि O2 गैस ऑक्सीजन N2 गैस. फायर एक्सटिंग्विशर में क्या हम लेते हैं CO2. नेक्स्ट. So these are the physical classifications.
ठीक है ना। और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा हमारे क्या होता है कि बहुत हॉट टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो क्या आयनिक स्टेट में प्रेजेंट होता है, whereas बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो क्या होता है सुपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और सुपर कंडक्टिविटी जैसे प्रॉपर्टीज शो करता है। सो देन हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन, these are also two types, pure substance and what mixture। ठीक है, again pure substance divided into two types, which is elements and compounds। ठीक है, then elements divided into three types as metal, non-metal and metalloid। Whereas compound divided into two types, organic compound and inorganic compound। ठीक है, mixtures are of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। ठीक है, so these are chemical classification of matter। So again matter according to chemical classification, matter divided into two types, pure substance and mixture। So pure substance हम किसे कहेंगे, pure substance हम किसे कहेंगे, मुंह ही बाजे रहो जेठी आधा 8 बजे। So pure substance हम किसे कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कोई बोलेगा, द सब्सटेंस which has a definite ratio of atoms। ठीक है जी, हम प्योर सब्सटेंस इससे कहते हैं that has a definite ratio of atoms which contains a definite ratio of atoms। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम किससे लेंगे, प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल बोलो, वाटर H2O, वहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तभी तो वाटर बनेगा। मैंने मुंह ऐसे ही है स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल क्या होगा, वाटर, देन ग्लूकोज C6H12O6, then we can say oxygen, ozone, carbon dioxide, etc. Then pure substance further classified into two types, elements and compounds। We know that elements are the pure substances which contains only one type of atom। ठीक है जी, so only it contains only one type of atom।
ठीक है. So pure elements are those which contains only one type of atom. Examples like Cl2, O2, N2, ठीक है ना, He, etc. Then compounds. कंपाउंड हम किसे कहेंगे? कंपाउंड हम किसे कहेंगे? कंपाउंड हम उसी को ही बोलेंगे ना जो दो से ज्यादा आटम उसमें प्रेजेंट होंगे और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे. ठीक है ना. सो कंपाउंड्स आर दोस इन कंपाउंड्स द आटम देयर आर मोर आटम, two or more atoms present in a definite proportion. Proportion or ratio. ठीक है. तो एग्जाम्पल हम किसे लेंगे? वाटर को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ग्लूकोज को लेंगे. समझ रहे हो? वाटर हम तभी बोलेंगे ना जब हमारा दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा. दैट मीन्स इट हैज अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और रेशियो. समझ रहे हो? CO2 हम तब बोलेंगे ना जब कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ ही मिलेगा. समझ रहे हो? देन अगेन हमारा एलिमेंट हम किसको बोलते थे? अगर एक एटम प्रेजेंट होगा तो प्योर सब्सटेंस में एक ही एटम प्रेजेंट होगा तो लाइक O2, N2, Cl2 बोल रहे थे ना. सो एलिमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स: मेटल, नॉन मेटल, एंड मेटलॉइड्स. सो तुम सब लोग 10th 9th 10th में पढ़े होंगे कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स भी क्या होता है. तो मेटल क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल: it is ductile in nature, ducticity, malleability, sonorous and it has some luster. So ये हम पढ़े थे क्या 10th में. अभी हम पढ़ेंगे हम मेटल उसको कहते हैं जिसके पास टेंडेंसी होता है, which has a tendency to what? lose electron. ठीक है. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हम तब क्या बोलेंगे उसको? मेटल. एंड metal oxides, we can say that metal oxides are basic in nature. ठीक है. फिर नॉन मेटल क्या होगा? अगर मेटल का टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल का क्या होगा? इसका अपोजिट, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो इट हैज अ टेंडेंसी टू accept electron. We can say that non-metal oxides are acidic in nature. ठीक है. एंड मेटलॉइड हम किससे कर लेंगे? अगर वो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज शो करेगा उससे क्या बोलेंगे? मेटलॉइड्स बोलेंगे. सो इट शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है. अभी एग्जांपल्स का मेटल का क्या होगा? मेटल्स के एग्जांपल दो. एग्जांपल्स ऑफ मेटल: गोल्ड, सिल्वर और क्या? एल्युमिनियम एक्सेट्रा. अभी नॉन मेटल क्या?
सभी गैसेस को ले लो नॉन मेटल में, सब गैसेस को ले लो, क्या नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा बोल सकते हैं। मेटलॉइड्स में क्या ले सकते हैं हम, बोरॉन ले सकते हैं, सिलिकॉन ले सकते हैं, टेलुरियम ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी हमारा हो गया क्या, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हो गया अभी, ठीक है ना, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अभी हो गया। तो अब हम आएंगे कंपाउंड्स के ऊपर। कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स का हो गया, अभी कंपाउंड्स में आएंगे। कंपाउंड्स है ऑफ टू टाइप्स, तो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहेंगे, अगर वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ डील कर रहा होगा, ठीक है, तो अभी तभी हम उसके क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, whereas in inorganic compound these are contains other atoms except carbon, but some are there where carbon present in inorganic compound, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर हम किससे कहेंगे, भेलपुरी खाए हो, भेल भेल खाए हो, दैट इज वन टाइप ऑफ मिक्सचर। वहाँ पे भेल लेते हैं, फिर क्या डालते हैं, थोड़ा सा कुकुम्बर, टमाटो, अनियंस, देन पीनट्स, थोड़ी ना वहाँ पे क्या प्रोपोर्शन में लेते हैं और रेशियो में लेते हैं, देखे होंगे, वहाँ पे एक लाए, यहाँ पे एक, यहाँ पे सबको मिक्स कर ले लो भेल, ठीक है ना। वही मिक्सचर डिड नॉट कंटेन्स एनी रेशियो, तो उसका कोई रेशियो नहीं होता, कुछ भी उसका कोई रेशियो नहीं होता। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सो होमोजेनियस मिक्सचर हम किसे कहेंगे, देयर आर मेनी मिक्सचर्स, तो होमोजेनियस मिक्सचर हम किसे कहेंगे। Mixture classified into two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. We know that mixture where we combines two or more substances combined and there is no chemical changes, ठीक है जी। in mixture there is no chemical changes occur, but in compound अच्छा ठीक है, फिर मुझे बोलो कि वाटर में दो दो एटम्स की प्रेजेंस है, ठीक है, एक तो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो क्या होगा, वाटर होगा ना, H2O, ठीक है ना। अभी मेरे को बोलो कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, वाटर में दोनों की प्रॉपर्टीज का वाटर शो करता है, दोनों की प्रॉपर्टीज है और वाटर की अलग शो करता है। So mixture again classifies into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. तो homogeneous mixture हम किसे कहेंगे, अगर दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और अ सिंगल फेज प्रोडक्ट फॉर्म होगा और सिंगल फेज मिक्सचर फॉर्म होगा और उसका कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। सो यू कैन से दैट टू और मोर कंपोनेंट्स और सब्सटेंस combines to form a single phase mixture
which has a uniform composition. So ठीक है, हम होमोजेनियस मिक्सचर उसे कहेंगे अगर दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो गए और सिंगल फेज मिक्सचर फॉर्मेशन होगा और उसका क्या होगा, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है ना। सो हम एग्जांपल्स में किसे ले सकते हैं, एग्जांपल्स में किसे ले सकते हैं, सॉल्ट वाटर ले सकते हैं ना, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट, अगर वाटर में सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा और सिंगल फेज मिक्सचर फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। सो सुगर वाटर, देन वी कैन से अल्कोहल वाटर। ठीक है। और एलॉयज, एलॉयज होगा या नहीं होगा होमोजेनियस मिक्सचर में, एलॉयज, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर, समझ रहे हो ना। एलॉयज आर लाइक ब्रोंज एंड ब्रास, ब्रोंज। ठीक है। these are in alloys we can say that these are solid homogeneous mixtures। ठीक है। then heterogeneous mixture हम कब करेंगे, अगर दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होगा और मिक्सचर फॉर्म होगा, जब हम उसको क्या, उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे हमारे खुद के आंखों से देख के, उसको क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, और ये एक सब्सटेंस है और वो एक सब्सटेंस। लेट्स से कि सैंड वाटर, सैंड लेंगे और वाटर में डालेंगे, वो एक मिक्सचर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना ये इतना सैंड है और इतना वाटर है, उसको देख के ही बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम वही लिखेंगे, टू और मोर substances combines to form a mixture which is non-uniform nature, and we can detect ठीक है, माइक्रोस्कोप भी हो और हमारा आई, दोनों के थ्रू हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्या है, कौन सा सब्सटेंस है ये और कौन सा सब्सटेंस का मिक्सचर है ये। ठीक है ना। तभी हम उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो एग्जांपल क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, सैंड, अभी बोली क्या, सैंड प्लस वाटर। ठीक है ना। और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, ऑयल वाटर नहीं लेंगे। तो अगर ऑयल को हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा ना, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ, अभी हमारा खत्म हो गया क्या से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। ठीक है ना। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर खत्म हो गया। सो अभी हमारा खत्म हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब हम थोड़ा रिव्यू ले लेंगे क्या हमने आज पढ़ा है। सो पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज अ साइंस of atoms or molecules or their transformation, and we can say that it deals with matter। ठीक है। then next
हमने क्या करा था, मैटर को समझा था कि मैटर क्या है। सो मैटर इज एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज सम वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम उसको मैटर बोलेंगे। तो मैटर के एग्जांपल में पेन, वुड, आयरन हमने लिया था वो। नेक्स्ट देन हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। मैटर क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैटर के टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर देयर इन मैटर। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, अनदर वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में क्या जाते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर को लेते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को हम ऑब्जर्व करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। एंड देयर आर टू एडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो नेक्स्ट हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन आ गया। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या लेते हैं, अगेन इट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। देन प्योर सब्सटेंसेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। So elements again divided into three types, that is metal, non-metal and metallar, and compounds are divided into organic compound and inorganic compound, whereas mixture are divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. We are now going to discuss about the solids that comes under the physical classification of matter. ठीक है, तो सॉलिड हम किसे बोलते हैं, which has a definite mass and volume and also shape, which has a definite shape, ठीक है ना। सॉलिड हम उसे बोलते हैं, तो इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, we know that they are closely packed like this, ठीक है। then there is a force of attraction present which is more than liquid and gas, ठीक है। अभी ऐसे होगा, यहाँ पे पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है ना। अभी उनके अंदर इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस आर वेरी लेस, समझ रहे हो। एग्जांपल्स में आयरन, वुड, एनी सॉलिड ले सकते हो, जो भी कुछ सॉलिड ले सकते हो। देन लिक्विड, सो लिक्विड हम उससे बोलते हैं which has volume but no shape, it takes the shape of container which is it kept, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम लिक्विड में क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन solid and the force of attraction is less than solid. So अभी हम एग्जांपल्स में क्या लेते हैं, वाटर, कॉफी, टी, एनीथिंग इन लिक्विड, जूस, जो भी कुछ, ठीक है। अभी गैस में इट हैज नो शेप एंड नो वॉल्यूम, ना ही उसका कुछ शेप है और ना वॉल्यूम है। सो इन पार्टिकल्स इन गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अभी ऐसे उनके डिस्टेंस दोनों पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा है, सो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, ठीक है। तो एग्जांपल्स में हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, these are gases. तो नेक्स्ट हम आएंगे, अभी ये क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशंस, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशंस के अंडर में क्या आता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है ना। सो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में प्योर सब्सटेंसेस आते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस हम अगेन प्योर सब्सटेंसेस को क्या डिवाइड करेंगे। सो प्योर सब्सटेंसेस हम उसे कहते हैं जिसके पास एक डेफिनेट प्रोपोर्शन और डेफिनेट रेशियो ऑफ क्या होता है, एटम्स का एक डेफिनेट रेशियो होता है, ठीक है ना। एग्जांपल्स में वाटर, ग्लूकोज, C6H12O6, O2 ऑक्सीजन एंड O3 ओजोन, CO2 इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंस अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। सो एलिमेंट्स आर दोस प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। जिसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। और वी कैन से दैट द सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। देन एलिमेंट्स only one type of atom is there, the chlorine, oxygen, hydrogen, helium, etc. we can say that these are elements. Then compound में क्या होगा, in compound there are a definite proportion of atoms or definite ratio atoms are present in a compound
विद अ डेफिनेट रेशियो, ठीक है ना, ठीक है। अभी वाटर H2O CO2 C6H12O6, तो इसके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है। वाटर हम तभी बोलेंगे जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा, थोड़ी ना हम H4O6 को वाटर बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे ना। तो वाटर का क्या होगा, जब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एटम्स प्रेजेंट होगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। और कंपाउंड्स आर केमिकली कंबाइंड, ठीक है, केमिकली कंबाइंड। The atoms in the compound are chemically combined with each other, समझ रहे हो। नेक्स्ट, so elements, again we classify elements into 3 types: metal, non-metal and metalloids. So metal which has a tendency to lose electron, and non-metal which has a tendency to accept electron. Metal oxides are basic in nature, whereas non-metal oxides are acidic in nature. So metals are gold, silver, aluminum, and non-metals are any gases like chlorine, nitrogen, oxygen. Metalloids, so it shows both properties of metal and non-metal, ठीक है ना। So it can accept electron or lose electron, समझ रहे हो। So these are the example: boron, silicon, tellurium. We can say that boron, silicon and tellurium show some properties of metal and non-metal. Sometimes it shows properties of metal and non-metal, ठीक है। नेक्स्ट compounds, ठीक है। compounds again divided into 2 types। अभी देखो इधर केमिकल क्लासिफिकेशन में आया प्योर सब्सटेंस, देन एलिमेंट। अभी एलिमेंट का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी आएंगे क्या, कंपाउंड्स के ऊपर। कंपाउंड्स 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर कार्बन मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स कार्बन, वी नो दैट। सो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उससे कहते हैं जिसके कंटेंट जो कार्बन कंटेंट है, ठीक है जी। So in that, in chemical classification we understand pure substance, elements, metal, non-metal and metalloids. These halves we understand, these halves. Then again we understand about compounds. So compound हम उससे बोलेंगे, हमने समझ लिया था कि कंपाउंड के पास डेफिनाइट प्रोपोर्शन में एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर two classification of compounds classified as organic compound and inorganic compounds, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उस कंपाउंड को बोलेंगे जिसके अंदर कार्बन होगा, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, whereas in inorganic compound there is these inorganic compounds are come from the metal and non-metal. So organic compounds are those which contains the carbon, whereas inorganic compounds are those compounds which did not contain carbon, and other than carbon there are presence of inorganic compounds. So then again we classify mixture into 2 types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture, ठीक है। So homogeneous mixtures, so mixture are of 2 types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Mixture हम किसे कहेंगे, अगर हम 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करेंगे और एक मिक्सचर फॉर्मेशन होगा which did not react chemically, ठीक है। वो केमिकली रिएक्ट करेंगे ही नहीं, मिक्सचर do not react chemically, और combine chemically. That means there is no chemical changes, ठीक है। So mixture में there is no chemical changes, ठीक है। Then again it classifies as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture are those when 2 or more substances combine to form a single phase mixture where this composition has a uniform composition,
ठीक है। देन उसके एग्जांपल में हम लिए थे सॉल्ट वाटर, सुगर वाटर, अल्कोहल वाटर। देन alloys आर द होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है ना। देन हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम किसे कहेंगे, अगर दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो गए, देन एक नॉन यूनिफॉर्मिक मिक्सचर फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। वी कैन डिटेक्ट द सब्सटेंस बाय आवर आई और माइक्रोस्कोप, ठीक है। अभी उसका चेंजेस माइक्रोस्कोपिक लेवल में नहीं होगा, वी कैन डिटेक्ट देम, ठीक है। अभी इसको ये कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हमारा मिक्सचर देगा, सो वी कैन डिटेक्ट the substances here. So we consider it as homogeneous mixture and this is heterogeneous mixture. And examples are sand water, oil water, ठीक है ना। So अभी तुम्हारा क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर खत्म हो गया, ठीक है। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। Then next class we will discuss about the law of chemical combination, the laws, ठीक है। There are 5 types of laws. So next class we will discuss about the laws of combination, chemical combination. Thank you.